Hello students, this is chapter 6, Lithosphere and Landforms. This is your geography part, and in the previous video we had studied about the structure of the earth. Before starting today's topic, I have to say you something that you have to read the lesson very carefully and very deeply, because I will give you summary. I will explain you the summary of the chapter and you will have to read the chapter deeply. So let's start. Today we will study about the rock and etc. All the substances which from the crust of the earth are called rocks. सारे substances जो crust में अर्थ की crust में पाए जाते हैं वो rocks कहलाते हैं. The word rock means hard material. तो जो rock है वो hard material होता है. There is 3 types of rock: igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. The igneous rocks are the primary rocks of the earth crust. These rocks are formed by hot molten rock material in the internal part of the earth. So students, you can see in this picture granite rocks, B basalt rocks, और इग्नियस रॉक्स की ये पिक्चर दी हुई है जो कि जो हॉट मोल्टन होता है रॉक का अर्थ के अंदर उससे बनती है. मीन्स जो पृथ्वी के अंदर जो कोई भी मटेरियल जो पिघल जाते हैं जब वो ठंडे हो जाते हैं तब इस तरह की रॉक्स बनती हैं. नाउ सेकेंड, सेडिमेंट्री रॉक्स. सो सम पेबल्स, टिनी पीसेस ऑफ स्टोन्स एक्सेट्रा stored in layers on land or under sea bottom. Such assembled substances are called sediments. तो स्टूडेंट्स, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के द्वारा बहाकर लाए गए छोटे छोटे बर्फ या नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए छोटे छोटे कंकड़ आदि से समुद्र का जो सतह होती है, समुद्र का जो तल होता है, उससे परतें जमा होती जाती हैं और परतों में एक कठोर पदार्थ बन जाते हैं जिसे कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. देखिए ये पेबल्स, सैंड, चीका, ऑर्गेनिज्म ये सारे बहकर आए हुए हैं और धीरे धीरे जम जाते हैं. तो इस तरह की रॉक्स का निर्माण इनसे होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. When the shape, color or characteristics of igneous and sedimentary rocks due to internal heat and pressure completely changed, then these completely changed rocks are called metamorphic rocks. जब sedimentary rocks और igneous rocks को उनका शेप, कलर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अर्थ की इंटरनल हीट और प्रेशर के कारण पूरी तरह से बदल जाएं, तब फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. हियर मेटामॉर्फिक रॉक्स डाइक एंड ट्रांसफॉर्म्ड. पहले ड्राई की और फिर ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद पूरी तरह से चेंज हो गए. These rocks are very hard. Now landform. Before starting the landform, I have to inform you that you have to read this chapter deeply and carefully. I will make the question between the chapters, so read deeply. I will give you only summary in short. So landforms. So landforms are the various type on the earth. Landforms keep on changing. The land is not uniform everywhere. There are 3 types of land: mountains, plateaus and plains. We classified the land in 3 categories: mountains, plateaus and plains. So mountains is a mass of land considerably higher than the surrounding area, that is more than 1000 meter above the sea level. Plateaus are the rising sharply above 600 meters or move above sea level. And plains are low, flat and fertile area on earth's surface whose elevation is usually low is known as plain.
these are up to 350 meters above the sea level. तो लैंड का वह पार्ट जो कि अपने आसपास के भाग से बहुत ज्यादा ऊंचा हो और समुद्र की सतह से जो सी लेवल से है, उस सी लेवल से उसकी जो ऊंचाई 1000 मीटर हो तो वह माउंटेन कहलाता है। इसी तरह से प्लेट्यू जो है वो सी लेवल से 600 मीटर या उससे अबव होता है और वह थोड़ा ऊंचा होता है पर माउंटेन से थोड़ा नीचे होता है। देन प्लेन, सो प्लेन जो होते हैं वो समतल होते हैं और समुद्र की जो सतह होती है, जो सी लेवल होता है, उससे उनकी ऊंचाई होती है वो 350 मीटर की लगभग होती है। जो प्लेन्स होते हैं यहीं पर हम निवास करते हैं और यही हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए इनको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। Changing landforms. We know that the level of surface of the earth is not equal everywhere. The internal and external forces of the earth keep on changing constantly. This is called the land movement process. हम सभी जान रहे हैं कि अब जो अर्थ है वो हर जगह इक्वल नहीं है, तो अर्थ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क करते हैं और इन्हें ही हम लैंड मूवमेंट की प्रोसेस कहते हैं। इन्हें हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, दूसरा सडन और फास्ट अर्थ मूवमेंट। लॉन्ग टाइम एंड स्लो अर्थ मूवमेंट्स, दिस हैपेंस वेरी स्लोली, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह बहुत स्लो होते हैं। माउंटेन्स मेकिंग मूवमेंट, इन माउंटेन्स मेकिंग मूवमेंट द फोर्स वर्क्स हॉरिजॉन्टली। माउंटेन मेकिंग मूवमेंट में क्या होता है, तो फोर्स होता है हॉरिजॉन्टली काम करता है। दिस क्रिएट्स प्रेशर और टेंशन इनसाइड द अर्थ एंड रॉक्स आर ब्रोकन और बेंट। और यह क्या कर देता है कि जो अर्थ के अंदर जो है वो टेंशन क्रिएट कर देता है और प्रेशर लगा देता है, उससे जो रॉक्स होते हैं वो बेंट हो जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये। और इस तरह से जो है माउंटेन की प्रोसेस शुरू होती है और माउंटेन बनते हैं। और यह भी टू वेज से बनता है, दो तरीके से बनता है, फोल्डिंग एंड रिफ्टिंग। फोल्डिंग, हॉरिजॉन्टल लैंड movement is the earth causes wave like bends in rocks and such bends are called folds। देखिए ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि फोल्डिंग, हॉरिजॉन्टली जब प्रेशर काम करता है अर्थ पर तो ये वेव्स की तरह हो जाता है, ये इस तरह से बेंड हो जाती हैं रॉक्स और इस तरह की जो प्रोसेस होती है फोल्डिंग कहलाती है। And rifting, the process of rocks breaking with pressure and tension of the horizontal land movement is called rifting। हॉरिजॉन्टल प्रेशर के कारण जो टेंशन क्रिएट होता है उससे जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इस तरह की प्रोसेस से जो अर्थ होती है उसमें लैंड मूवमेंट जो होते हैं उसको हम रिफ्टिंग कहते हैं। द रिफ्ट वैलीज और ब्लॉक माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर रिफ्टिंग, फोर्स्ड प्रेशर, ये आप देखिए दोनों तरफ से फोर्स्ड प्रेशर लग रहा है और दोनों अपनी ही तरफ खींच रहे हैं तो बीच में गैप हो जाते हैं ये। Sometimes due to unexpected forces, the earth movements are totally changed and these are called the sudden land movement। These happen in two ways, volcano and earthquake। कभी कभी क्या होता है, अचानक से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं अर्थ पर जिससे कि अर्थ का जो मूवमेंट है वो सडनली बदल जाता है और या दो तरीके से बदलता है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक। इसे हम सडन लैंड मूवमेंट कहते हैं। The example of sudden land movement are the volcano and earthquake। We will read about them in the next video।